the domain of satellite communications. So Preeti is an entrepreneur, an athlete, a national level hockey player, a cyclist, a marathon, a mom of two teenagers, a housewife, and a person who disproved my assumption that I cannot put all of these professions and roles in a single sentence. She started her cycling and running in February 2017. Since then, she has run full marathons, 30 half marathons, two ultras, and still counting. If you don't know what marathons, half marathons, and ultras are, you must start exercising. On 3rd of December 2019, she, along with two other cyclists, achieved a world record by completing Kashmir to Kanyakumari, also called as K2K, cycling expedition in just 17 days, 17 hours, cycling a distance of 3,773 kilometers. In the same month, on 26th December 2019, she cycled from Nashik, Maharashtra to Amritsar, Punjab, covering a distance of 1600 kilometers in 5 days, 5 hours, becoming the only female cyclist to have successfully completed this route. For this achievement, she has earned the SR Super Randonneur title. On 23rd March 2021, she finished cycling 6,000 kilometers of the Golden Quadrilateral in just 24 days, 6 hours, and has set a record in Guinness Book. On 17th December 2021, she completed 220-kilometer Pune-Kolhapur intercity run in 46 hours, along with 5 ultra runners. From 22nd to 24th June, she completed fastest solo cycling from Leh, cycling Leh Manali in just 55 hours, 13 minutes, and logged another entry in Guinness Book of World Records, along with a record in Uka. Currently, she is preparing for fastest Leh Manali running on foot on high altitude and Trans India west to east 3,800 kilometers in 14 days as VUCA record attempt. She is also practicing for triathlons and wants to complete Ironman by 2022. I don't know what to say. I'm out of breath just by reading her achievements. It's insane that it is even possible by a human body to achieve all of this. It's an honor to have you among us, ma'am. With this, I present you Preeti Maske. Thank you. Hello, good afternoon. Hello, Deepa. Yes, Preeti, we can hear you. Please continue. Okay. Are you showing that PPT? Amy is showing it. Hi. So, that I'm entrepreneur, yeah, mom of two teenagers, triathlete, mountaineer, cyclist, runner, and discovering so many new passions. So basically, from start, I was not like that. I was housewife who is pursuing only her two kids and looking up, helping her husband in his small business and household work. Nothing I had done till 18 to 20 years after marriage. And suddenly at the age of 40, accidentally actually, I was into running, and in 5 kilometer running that day, surprisingly, I continued and completed that run in 25 minutes and got podium. And so I thought, okay, now I can start running, and just started running. And same like after 2 months, I got opportunity to participate in one event. It is called Enduro. It is having cycle, swim, and run. It is totally off-road. It is famous and got podium in that also. So I thought I can start cycling again. In school days, we everyone have cycled for school, tuitions, or plays, playing and cycling. But
it is not a passionately or not a so far distance. I have done same, but after age of 40, when I started, then I can pedal still now. And just started. And when I started my, is it okay? I can switch in between little bit Hindi and English. Everyone is comfortable. Yes, no problem. Yeah. So जब मैंने साइकिलिंग या रनिंग शुरू किया, तो ऐसा नहीं था कि मैंने डिसाइड किया था. सिर्फ हाँ, मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में थी. आई वॉज नेशनल हॉकी प्लेयर एंड बास्केटबॉल प्लेयर. ये था स्कूल डेज में 10th 12th तक. सो ये था कि मुझे कुछ We seem to have lost audio with one of you, Alert. Yeah, I think we seem to have lost Sure. the audio. Yes, sir. We'll do that. Okay. Is it fine now? Yeah, Yes, right now sir. it's fine. Yeah. सो ऐसा नहीं है कि मैं पहले से ऐसी थी. सो एट द एज ऑफ 40 जब मैंने शुरू किया 2017, सो फ्रॉम 2015 to 2017 I was facing so many physical problems like PCOD, hormonal imbalance. I was having my hormonal issues, so many issues, and frustration, confidence level off. इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स थे कि मैं घर के घर में चल भी नहीं पाती थी. वहां से एक फ्लोर भी ऊपर गई तो मैं हाँफती थी, चल नहीं पाती थी, मुझे रुकना पड़ता था. और मेरा एनीमिया, आई वाज सीवियर एनीमिक. मैं हीमोग्लोबिन लेवल is going to 4 to 6. It was varying in between. Then my D3 level, B12 level, ये सब कुछ इतना कम था कि मैं जो काम है वो ठीक से नहीं कर पा रही थी. मुझे लगता था कि सब काम मैं ही कर रही हूँ, इसीलिए मुझे इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं. I was thinking like that. And when I started that cycling, running, then जब भी नंबर आए तो मैंने सोचा कि चलो वापस ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं. और मैंने बच्चों के साथ में ग्राउंड ज्वाइन किया. और within 2 months I represented Maharashtra, then India, and got opportunity for international athletics in 2018. So then I represented India in Malaysia in 2017, I think. Can you move to the next slide? This was when I started, and this is in 2020. When I was pacing for 21 kilometer, 2 hours 10 minutes. Next. Then, yeah, what I told, this is Masters Athletics. If anyone don't know, till age of 20, we are having open category for state, national, internationals. But after age of 40, we are having again Masters age category where you can play any of game and represent in states, master, then nationals, and you can represent internationals also. So in 2017, I represented India, and with 3 months of practice, I got 2 gold, 1 silver, and 1 bronze. So this was the start of my career, and वहां से आने के बाद आ रहे हैं, आपने इंडिया का जर्सी पहना है, इंडिया का फ्लैग लेके कहीं पर रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो इट वाज वेरी नाइस फीलिंग. इतने सालों बाद आपको कुछ ऐसा मौका मिला है कि आप कुछ कर दिखाओ. सो इट वाज गुड फॉर मी. उसके बाद आई वेंट टू स्पेन, रिप्रेजेंट इंडिया. देन I have done Everest base camp along with my trekking group. Then उसी साल I ran Mumbai to Pune
एज अ पिंकाथॉन एम्बेसडर, और वो एक अपॉर्चुनिटी मिली. तो ऐसे आई गॉट दैट ईयर सो मेनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड हर जगह पे अच्छा होता गया. मेन in between when I started and I was completing 1 year, मेरे जो सारे health issues थे, anemia, PCOD, hormonal imbalance, all suddenly started vanishing. ऐसे नहीं था कि उसके पहले मैं कुछ डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट नहीं लेती थी या कुछ नहीं चल रहा था. फ्रॉम 2015 टू 17 सारे ट्रीटमेंट्स चल रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद वापस मेरा सब कुछ ड्रॉप डाउन हो जाता था और कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं दिख रहा था. व्हेन आई स्टार्टेड स्पोर्ट्स, तो उसके बाद ये सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखने लगे, एंड फैमिली फेल्ट के हर बार हॉस्पिटलाइज होने से बेटर है कि ये स्पोर्ट्स में कुछ तो अच्छा कर रही है और अच्छे इफेक्ट दिख रहे. सो उन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, इनकरेज करना शुरू किया, और हर टाइम डिफरेंट कुछ ना कुछ करते गए. नेक्स्ट. Can we move to next? This is Everest Base Camp. This is Mumbai Pune run as a Pinkathon ambassador. This one is Everest Base Camp. बिना तैयारी के 8 ही दिन में एक चांस मिला था कि बेस कैंप करते हैं, जिसके लोग सालों तक सोचते रहते कि हम एक बार करेंगे. I got that opportunity and done that. This one was 165 kilometer. We ran with Milind Soman as a Pinkathon ambassador, Mumbai to Pune, 165 kilometer. It was 3 days run. Day 1 is 65 kilometer, day 2 was 55 kilometer, and day 3 was 45 kilometer. But this was with only 3 months of training, और वो भी ऑनलाइन ट्रेनिंग था. लेकिन they were giving कि आप आज इतना रन करोगे, then next day इतना, वीकेंड में इतना. तो हम लोग उतना सारा माइलेज यहाँ पे करते थे और हम सिर्फ उनको शेयर करते थे कि हम लोग कितना कर रहे हैं, स्ट्रावा का डेटा या गार्मिन का डेटा, और उसके ऊपर दे वेर गिविंग कि आपने ये क्वालिफाई कर लिया. उसके बाद उनके चेक पॉइंट्स हुए और हम लोगों ने ये रन किया था. सो दिस वाज माय फर्स्ट एवर बिग अल्ट्रा रन, जहां से पेस कुछ भी हो बट ये कॉन्फिडेंस आया कि ऐसा कोई लंबा चौड़ा रन हम कर सकते हैं, क्योंकि उसके पहले वॉक भी बहुत मुश्किल था, जिसके बाद एक ही साल के अंदर आई रैन दिस 165 किलोमीटर. सो दिस हैज गिवन लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. देन बहुत सारा मीडिया कवरेज मिला, लोगों ने पहचानना शुरू किया, मेरे सारे फ्रेंड्स लोग आए थे ऑन द वे चीयरिंग के लिए. सो कि अच्छा लगने लगा कि आप कुछ कर रहे हो, उसका अप्रिसिएशन मिल जाए हर तरह से, तो देन यू स्टार्ट लविंग दैट. कैन वी मूव टू नेक्स्ट? सो दिस वन इज द बेस्ट टर्निंग पॉइंट. ये है कश्मीर टू कन्याकुमारी. ये जो फ्लैग ऑफ देख रहे हैं आप, दिस वन इज फ्लैग ऑफ फ्रॉम बनिहाल. ये हमने इसका ये खास था, दिस वाज टोटली सेल्फ सपोर्टेड रन, जिसमें कोई बैकअप नहीं था, कुछ भी नहीं था. वी हैव टू कैरी आवर ओन लगेज, ओन साइकिल का जो भी प्रॉब्लम हुआ तो खुद सॉल्व करना था. एंड ये सारे जो साइकिलिस्ट दिख रहे हैं, देयर आर 19 साइकिलिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. यहाँ से एक जन भी एक जन को पहचानता नहीं था. सिर्फ एवरीवन वाज रीच्ड श्रीनगर only with that passion that they want to ride Kashmir to Kanyakumari non-supported. So this was, इसमें एक था कि हर एक की भाषा अलग थी, स्पीड अलग था. कोई नेशनल साइकिलिस्ट थे, कोई बहुत यंगस्टर, किसी का एज कुछ, लेकिन एक ही पैशन में सारे लोग पहुंच गए थे कि हम लोग पूरा इंडिया कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिलिंग करेंगे. ऊपर देख रहे ये सारी पूना की टीम है, फैमिली है जो एयरपोर्ट पे छोड़ने आई थी. एंड दिस वन इज कन्याकुमारी व्हेन वी रीच. और यहाँ पे है जो हमने खुद की साइकिलें खुद असेंबल की थी, और ये जर्नी का फ्लैग ऑफ हुआ था. कैन वी मूव टू नेक्स्ट?
या दिस वन, यहाँ पे इतने सारे एक्सपीरियंस हो गए. सो माइंड बॉडी सब कुछ तैयार हो गया ये 17 डेज में. दिस वॉज डिगडोल लैंडस्लाइड. यहाँ पे हमने राइड शुरू ही किया था और 27 किलोमीटर पे हमको एक बड़ा सा लैंडस्लाइड मिला, पूरा रास्ता बंद था. तो दिस वॉज के वहाँ के लोकल लोगों ने हमारी रहने की पंचायत हाउस में व्यवस्था की. देन उन लोगों ने हमें सर्व किया बना के, जहाँ पे बैठे थे वैसी जगह पे. रात भर यहाँ पे बाहर पहरा दिया हमारे लिए. और दूसरे दिन ये वहाँ के पुलिस और बीआरओ उन लोगों ने ये रास्ता पूरा ओपन किया. और पहले हम लोगों को छोड़ा गया ताकि, क्योंकि ये तब तक 8-10 किलोमीटर लंबी लाइन लग चुकी थी गाड़ियों की. सो उन्होंने हम लोगों को पहले अलाउ किया, छोटा रास्ता बना के आप लोग पहले निकलो. ये वहाँ के एसीपी सर है जिन्होंने काफी सारी मदद की थी. और फिर हम निकले. देन बहुत सारी जगह करते हुए ये ग्रुप के लोग हैं अलग अलग से, कोई आसाम से था, कोई राजस्थान से था, कोई गुजरात से, कोई उत्तराखंड से, कोई महाराष्ट्र से. सो देयर वेर पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. और एक जुनून के साथ सारे पड़ाव करते करते सारे निकले थे. यहाँ पे देयर इज वन इंसिडेंट, दिस वन व्हेन आई गॉट एक्सीडेंट. एक क्रेटा ने पानीपत में मुझे उड़ा के चली गई थी. मेरा साइकिल पूरा का पूरा डैमेज हुआ था, रिम, चेन, टायर, ट्यूब सब कुछ, और मुझे भी काफी सारे चोट आई थी. सो वहां से हम निकले, एक पूरी साइकिल रिपेयर की उसी दिन दिल्ली में, और मेरा डॉक्टर किया. फिर मैंने ये फोटो था जो घर पे भेजा कि आई एम सेफ एंड साउंड, तो मैं अभी जा सकती हूँ क्या नेक्स्ट डे. एंड नेक्स्ट डे हम लोग जयपुर पहुंच गए थे. ये जयपुर से लोग हमको मिलने आए थे. सो इट वाज सरप्राइज कि जब यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी ने उड़ाया था, तब लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया. और कुछ ही दिनों टाइम में 2-3 घंटे में हम लोग ये साइकिल का पूरा सब कुछ चेंज करके, ये फोटो है दूसरे दिन सुबह का. नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वाज रेडी टू राइड टिल जयपुर. और उस दिन हमने सबसे लंबा राइड किया था 270 किलोमीटर का. देन अलग अलग करके ये पूना वाला है जहाँ पे हमको वेलकम किया गया हर जगह पे. देन दिस वन वी रीच्ड कन्याकुमारी इन 17 days 17 hours, और जिसका इंडिया बुक रिकॉर्ड बना था. तब हमने ये किसी का फेसबुक पे पढ़ के गए थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी कोई साइकिलिंग करना चाहता है और साथ में रिकॉर्ड बनाना चाहता है तो कनेक्ट विथ मी. और ऐसे ही सारे पागलपन में पहुंच गए थे. एंड फाइनली बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स के बाद वी रीच कन्याकुमारी. दिस वाज फैबुलस फीलिंग. उसके बाद ये रेडियो में, पेपर में इंटरव्यू हुए थे, उसका वाला है. नेक्स्ट दिस वन. उस टाइम मेरा पहला नॉन स्टॉप 3 घाट करके पुणे टू पंचगनी रन हुआ था. ये सारा मिला के था 20 आवर्स में. ये रनिंग टाइम था 15 आवर्स से कम. तो हाँ, ये था स्टेयरवे टू हेवन. अलॉन्ग विथ ये सारे हैं अल्ट्रा रनर्स है जिनको मैं कोच मानती हूँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं उन लोगों के साथ रन कर सकूं. दिस वाज माय फर्स्ट इंटरसिटी अल्ट्रा रन. एक दिन में जो हमने 101 किलोमीटर किया था, स्टेयरवे टू हेवन. दिस वाज स्पॉन्सर्ड बाय मालाज. सो यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था. देन जैसे मैं कश्मीर से कन्याकुमारी करके पूना पहुंची थी 6 दिसंबर को, एंड सडनली आई गॉट अपॉर्चुनिटी कि नासिक टू अमृतसर एक एसआर हो रहा था. एसआर का मतलब होता है सुपर रैंडोनियर टाइटल, जो पेरिस का ऑडॉक्स इंडिया का मेंबरशिप लेके किया जाता है. एक सीजन में आप 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर की राइड स्पेसिफिक टाइम में करते हो तो आपको ये टाइटल मिलता है. लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि 5 days 5 hours में आप ये सारा पूरा का पूरा डिस्टेंस भी कंप्लीट करोगे, गोल्डन टेम्पल भी पहुंचोगे और सुपर रैंडोनियर बनोगे. तो ये लगा था समथिंग यूनिक. सबने पूछा था कि तुमने अभी तो 3800 किया है, देन व्हाट इज डिफरेंट इन दिस. मेरे लिए था कि एक तो गोल्डन टेम्पल जा रहे थे. नेक्स्ट वन वाज
कि Kashmir to Kanyakumari was 230 kilometer per day, or this ride was 330 kilometer per day, and I was the only lady who completed this, and India's first lady to complete 5 days SR. So this was something unique. And again this ये राइड जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था नासिक टू अमृतसर, वहाँ के मेन थे डॉक्टर महेंद्र महाजन. उन्होंने मुझे फोन किया था कि तुम ऐसे कोई राइड करना चाहोगी जो राइड भी करोगी और गिनीज रिकॉर्ड भी कर पाओगे. तो मैंने सोचा अच्छा है. उनको बोला कैसे कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने ये सुना है देखा है बचपन में कि गिनीज रिकॉर्ड कुछ होता है. सो ही टोल्ड कि मैं तुमको सब बताते जाऊंगा, तुम प्रोसीजर करते जाओ. एंड सब प्रोसीजर की बीच में पैंडेमिक आया, इसीलिए कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा था. देन आज सडनली रिप्लाई आया और हम डिसाइड किया कि ये राइड करेंगे. और दिस स्टार्टेड, ये पैंडेमिक में शुरू किया था जब 12 आवर्स का कट ये था, लॉकडाउन लगा था, इवनिंग 6 टू मॉर्निंग 6. तब हमने So an audio malfunction, I think a bandwidth issue. Please bear with us. Yeah, this is because of rains, I guess, in Maharashtra. So just bear with us. We will connect soon. I'm sure everybody must be stunned into some kind of silence looking at 330 kilometers a day of cycling. Can't even do 300 kilometers of car driving a day so easily. So something of different level altogether. She is connecting back. हेलो, सॉरी सडनली लाइट चली गई थी तो मैंने अभी दूसरा शुरू किया है कनेक्शन. सो कैन वी शो पीपीटी अगेन? It's been displayed, Preeti. You can talk. Okay. So गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाज द वो राइड था जो 30 डेज का गिनीज का अप्रूवल आया था. एंड उसके बाद हमने शुरू किया 27 फेब को. देन दिस वाज फिनिश्ड इन ऑन 21st ऑफ मार्च, और ये 24 डेज 6 आवर्स में कंप्लीट हुआ था, जिसके बीच में मेरे खुद के नींद के कारण बोलो या हीट के कारण बोलो या जो प्रॉब्लम हो रहे थे, मैंने खुद 3 एक्सीडेंट फेस किए, जिसमें से थर्ड वाला था जब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ था. तब ऐसा था कि मैंने सोचा आई हैव टू क्विट, लेकिन तब तक इतने लोग जुड़ गए थे. आई हैव कवर्ड मोर देन 4500 किलोमीटर. इट वाज इन गया, बिहार. तो अगर 4,500 किलोमीटर आप चला चुके हो, उसके बाद 1,500 किलोमीटर फिर सिर्फ बचा है, सारी चीजें फेस कर चुके हो. रिकॉर्ड में आपको क्रू सपोर्ट लगता है. सो क्रू में ऐसे लोगों को तैयार करके लेके गई थी जो मेरे लिए टाइम निकाल सकते हैं. अभी आप किसको तैयार करके लाए हो, देन इतने सारे लोग जुड़े हैं आपके पैशन से, एम्बिशन से, रिकॉर्ड से, तो गिव अप भी नहीं कर सकते थे. तो तब तक हम इतना अच्छा जा रहे थे कि आई वाज थिंकिंग हम लोग ये सारा जर्नी फिनिश कर सकते हैं 18 टू 20 डेज में. और एक्सीडेंट के बाद वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग के कैन वी riding 100 to 150 किलोमीटर, कैन वी रीच टिल इन 30 डेज. ये सारा सीन चेंज हो चुका था. फिर गया से लेकर वाराणसी तक तो सब कुछ खींचते चले गए 3 दिन तक.
देन वहाँ पे हमको अच्छा फिजियो मिला, समवन अरेंज डॉक्टर फिजियो अच्छा वाला, जिन्होंने हमारा राइड बिना रुके फिजियो देते देते 3 दिन अलग अलग जगहों पे फिजियो अरेंज किया। और उसकी वजह से इतना अच्छा हुआ कि दिल्ली में पहुंचते पहुंचते आई गॉट कॉन्फिडेंस कि मैं अभी चला लूंगी अच्छे से। एंड देन गुजरात में पहुंचते पहुंचते तो आई डिसाइडेड कि मैं सीधा पुणे पहुंच जाऊंगी। देन गुजरात से जो राइड शुरू किया उसी दिन हम पहुंच गए रात को मुंबई, और देन वहाँ पे सारा वेलकम हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें नींद आने लगी। देन मुंबई टू पुणे पहुंचते पहुंचते जो जर्नी 5 घंटे में खत्म होना था वो खत्म होने के लिए देन अगेन 8-10 घंटों से ज्यादा घंटे लगे। सो बट दैट वाज द ग्लोरी कि पूरे साइकिल कम्युनिटी में, रनिंग कम्युनिटी में मेरे ग्रुप ने सबने सपोर्ट किया कि कोई ऐसा बड़ा ड्रीम देख रहे हो तो एवरीवन इज विथ यू। एंड देन अगेन दिस स्लाइड इज लास्ट ईयर एक राइड 12 सितंबर 2021, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी, जो इन्होंने बारामुल्ला उरी कमान सेतु जो पाकिस्तान बॉर्डर है वहां तक इनवाइट करके एक राइड हुआ था, जिसमें अगेन मिलिंद सोमन वाज फेस ऑफ द राइड एंड गॉट अपॉर्चुनिटी टू राइड विथ हिम। और दिस वाज के इतना सुहावना एरिया है, ब्यूटीफुल प्लेस बारामुल्ला उरी, लेकिन वहां पे हमेशा हमने सुना है कि बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बाकी सब कुछ होता है, तो एक्टिविटीज इसलिए हम जा नहीं पाते। तो ये सारा ब्यूटीफुल एरिया देखने का मिला। सिर्फ उसके साथ है कि मैंने सोचा कि सिर्फ एक दिन के लिए राइड के लिए कश्मीर जाने से बेटर है श्रीनगर टू खारदुंगला करते हैं। और मैंने सोलो नॉन सपोर्टेड आई हैव डन श्रीनगर टू खारदुंगला, एंड वो 3 days 7 hours में किया था, एंड इट वाज इंडिया बुक रिकॉर्ड। एंड वो था कि जब आर्मी के लोगों ने वहां से जाते जाते ऑन द स्पॉट बहुत सारा सपोर्ट किया, चीयरिंग किया, एंड आई गॉट कनेक्टेड विद देम। अगेन ये एक राइड देखोगे, ये हमने किया था नवंबर में, 27 आवर्स में 12 रिकॉर्ड्स हमारे नाम पे हुए थे, गिनीस के, उका भी और गिनीस भी। 1000 किलोमीटर फास्टेस्ट रिले राइड की थी हम, ये 8 वुमेन फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सो ये हमने 27 आवर्स में की थी, और ऑल ओवर बाकी वाले सारे 100, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर, 500 माइल, ये सारे राइड हमने कम टाइम में करके उसमें 12 रिकॉर्ड्स हमारे नाम पे हुए थे। दिस वाज आई टोल्ड कि सोलो नॉन सपोर्टेड वाला श्रीनगर टू लेह खारदुंगला वाला राइड, ये भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस दिया गया। और यही से मुझे था कि मैं मनाली लेह वाले रूट पे कुछ करूं और कर सकती हूँ। आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस। देन आई अप्लाइड फॉर गिनीस, और साइकिलिंग और रनिंग दोनों के लिए अप्लाई किया था, दोनों का अप्रूवल आया। तो साइकिलिंग का पहले अब भी किया मैंने, लेह टू मनाली 60 आवर्स का गिनीस का और उका का अप्रूवल था। उका का रिकॉर्ड आ चुका है, गिनीस इज अंडर प्रोसेस। सो दिस आई हैव डन इन 55 आवर्स 13 मिनट। ये था कि यू हैव टू क्रॉस 5 पासेस जो अल्टीट्यूड के होते हैं, कवरिंग दैट यू हैव टू कंप्लीट। एंड अगेन दिस वाज समथिंग यूनिक, जिससे मुझे लगा आई कैन रन लेह टू मनाली, कॉन्फिडेंस जिसने दिया। दिस वाज पुणे टू कोल्हापुर रन, along with these 5 ultra runners, I ran Pune to Kolhapur 220 kilometer in 46 hours, including all breaks, sleep, food, all. So this was again unique, and यहाँ पे हमने it was run for diabetes, काफी सारा फंडिंग इकट्ठा करके हमने नित्याशा फाउंडेशन को डोनेट किया था। सो ये होने के बाद मुझे लगा कि आई कैन डेयर फॉर लेह टू मनाली, और अल्टीट्यूड का तो है ही, एंड देन स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर बोथ। नाउ ऑन 1st of August I am going for running Leh to Manali, and this was Tour de Kailash ride. ये था इनिशिएटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट, जो ओम पर्वत और आदि पर्वत है, आदि कैलाश मतलब जो कैलाश पर्वत का इंडिया वाला रूट है, ये वाला। यहाँ पे लोग ट्रेक करके चल के जाते हैं, वहां पे हम लोग साइकिल करके गए थे ऑफ रोड एमटीबी। और ये मैं सिर्फ यहाँ लेह मनाली साइकिलिंग से पहले आई वेंट बिकॉज अल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए गई थी सिर्फ,
एंड दिस वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस अगेन. बहुत रास्ता, मतलब रास्ता ही नहीं है वहां जाने के लिए जहाँ पे आप जा रहे हो. और जहाँ पे गए हमने वहां पे पर्वत पे साइकिलिंग भी की, बहुत अच्छा नज़ारा देखा, कैलाश जी के दर्शन भी हुए. एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट. सो दिस वाज अगेन यूनिक सम राइड. एंड हाँ, एक था, दिस वाज जो मैंने अभी किया, ये मुझे BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो आर्मी का ही एक ब्रांच है, जो बॉर्डर के रोड बनाता है या लैंडस्लाइड होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, दे आर हेल्पिंग. सो उन्होंने ये सपोर्ट किया अगर उनके एरिया में मैं ऐसे सोलो कुछ कर रही हूँ. तो ये नॉर्मली होता है कि कोई इवेंट के बाद हम लोग सोचते हैं कि सेलिब्रेशन करते हैं, लेट अस सेलिब्रेट. हम लोग याद है व्हेन आई फिनिश लेह टू मनाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें DGBR सर का मैसेज आया. DGBR मीन्स हेड ऑफ द आर्मी, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी. तो उनका मैसेज आया कि यू हैव डन दिस मार्वलस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल, वी आर प्राउड ऑफ यू. उन्होंने जो उनके ट्विटर पे डाला था वो लिंक भेजा. उन्होंने तब भी पूछा कि ट्राई समडे फॉर उमलिंगला. उमलिंगला किसी को पता ना होता, वो रोड है जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, जिसका गिनीज का सर्टिफिकेट है वहां पे लगा हुआ. सो गॉट दैट अपॉर्चुनिटी के वो भी रोड करे. तो उनको हमने बोला कि सर गाड़ियां भी यही है, हम भी एक्लेमेटाइज है, सो लेटेस्ट राइड नाउ. तो हमने उसका सेलिब्रेशन वहीं पे छोड़ा and we went to Umlingla, highest motorable road. It is 300 kilometer from Leh. वो साइकिलिंग किया. I rode till 19,024 feet. वहां तक हम पहुंचे, जो मोर देन एवरेस्ट बेस कैंप. और दिस वाज अगेन कि वहां पे उस दिन साइकिल पे कोई पहली बार लड़की पहुंची थी साइकिल करते हुए. सो दिस वाज अगेन, बट वो कोई रिकॉर्ड नहीं था, सडनली कोई अपॉर्चुनिटी मिली थी जो हमने ले ली. बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस कि जहाँ पे लोग सोचते भी नहीं है वहां पे साइकिल करने का सडनली मौका मिला. एंड नाउ दिस इज आई एम रनिंग 9th to 15th August. This will be again with motto. I am dedicating my this run to Indian Army and Border Road Organization, hidden heroes who laid their lives to for our nation, and women health awareness. इसके लिए मैं कर रही हूँ. वुमेन हेल्थ अवेयरनेस, आई थिंक व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज मैं खुद से सोचती हूँ, चाहती हूँ कि मैं कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुंची इसके कारण, हेल्थ या स्पोर्ट्स के कारण. सो इतना हर एक को करने की जरूरत नहीं है, बट व्हेन दे स्टार्ट ना कि थोड़ा ही खुद के लिए टाइम दो, दिन का 1 घंटे का, देन यू विल गेट पॉजिटिविटी. आई वांट टू शेयर समथिंग कि पीपल आर सेइंग कि तुम रिकॉर्ड करती हो तो इसमें खर्चा है, बहुत कुछ है, लेकिन हाँ टाइम भी बहुत जाता है. बट आई कॉम्प्रोमाइज इट टू फैमिली टाइम, मीन्स नॉट एग्जैक्टली फैमिली टाइम. मैं कोई बड़े फंक्शन है, शादियां है या छुट्टियां है, वो मनाने कभी नहीं जाती हूँ. मैं ये वाले इवेंट्स प्रिफर करती हूँ और ये करती हूँ. दूसरा, मेरा स्पोर्ट्स में जब से आई तो देन इट बिकम पैशन, और अभी वो प्रोफेशन भी बन गया. ऐसा सोचो कि स्पोर्ट्स में कोई नहीं थे 3-4 साल पहले, तुम यू आर नो वन टू सो मच. अभी आपको लोग अच्छा पहचानते हैं, आप एक फेस हो. दूसरा है कि इसी से मेरे 2-3 बिजनेस शुरू हुए. एक है कि मैंने बाम्बू साइकिल में काम करना शुरू किया, हम 2-3 दोस्तों ने मिलके, जिसका अभी बहुत सारे प्रोडक्ट इंक्लूडिंग साइकिल फ्रेम्स और साइकिल्स भी बना रहे हैं हम लोग, जिसके ऊपर अगला वाला कुछ राइड भी बड़ा सा करेंगे. देन बाम्बू साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से है वो. देन टॉप स्पीड साइकिल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम लोग 2-3 जन मिलके एक कंपनी प्रॉपर है, किड्स साइकिल एंड नॉन गियर साइकिल बनाते हैं, जिसका अच्छा खासा होलसेलिंग हो रहा है पिछले 2 साल में. देन दिस ईयर वी स्टार्टेड, मुझे खुद को साइकिलिंग पसंद है, उस पर डिफरेंट रूट करना पसंद है. सो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि उसी में हम लोग कुछ ना कुछ कर पाए एड ऑन. तो वी स्टार्टेड वर्ल्ड ऑन व्हील्स करके एक एडवेंचर कंपनी, 3 to 4 अलग वाले दोस्त, जहाँ पे हम लोग एडवेंचर और टूरिज्म साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं, और विथ नॉमिनल चार्जेस यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स वहाँ पे ये बताते हैं, जिसका, और साइकिलिस्ट है और रनर है तो हमको पता है कि क्या डिफिकल्टीज आती है और हम कैसे सपोर्ट करते हैं. सो
your passion become profession also. It has given you new identity. So why not? It is like that only. Hello? Yes. Yeah. Yes, yes. सो इट इज लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स है, वो आपका पैशन हो सकता है, आपका फिटनेस ला सकता है, आपको एक पहचान दे सकता है, तो व्हाई नॉट. और ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एट द एज ऑफ 45 आई विल गेट दिस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज. Absolutely amazing, Preeti. One question for you to start with. ये जो आपने बोला कि ultra, extreme cycling 300 plus kilometers a day, अब तो लगता है बहुत दूर की बात है. पहला 5 किलोमीटर कैसा निकले हम? So let us set that if you were to give us some advice, यहाँ जो 100 लोग हैं, some of them may be running. So पहला 5 किलोमीटर करने के लिए क्या चाहिए? घर से निकलना चाहिए, नींद से उठ के. ये सबसे डिफिकल्ट चीज है कि आपको निकल के ग्राउंड पे पहुंचो तो आप सब कुछ कर लोगे, बट मॉर्निंग में निकलना, यही सबसे बड़ी बात होती है. घर से ग्राउंड तक पहुंचना, वो जर्नी आपने तय कर लिया ना, 1 हफ्ता 1 महीना आपको पुश ऑन करने की जरूरत है. ये हो गया तो देन यू कैन डू मिरेकल्स. एब्सोल्युटली. वो इनर्शिया जो ब्रेक करना है, जो उस रनिंग के पहले वार्म अप या कुछ डाइट के बारे में, आपका तो हेल्थ भी बहुत कमजोर था, आपने बताया कि यू हैड लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, तो प्रिकॉशंस क्या लेना चाहिए? मतलब जो डाइट या स्पेसिफिकली वार्म अप या स्ट्रेचेस या इक्विपमेंट जैसे शू? No, not like that, but warm up and stretching is most important thing because you avoid injury with that. So मतलब मुझे मेरे कोच ने बताया था कि 2 किलोमीटर कम करेगी तो चलेगा, बट वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. वार्म अप तो इतना जरूरी है कि उससे ही आपको एनर्जी आएगा और लगेगा. सडनली आप रन शुरू करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ पेन कर रहा है, बट विथ वार्म अप इट विल गो इजीली विथ ईज. और अबाउट डाइट ये बोलना चाहूंगी कि आई एम जैन, सो वेज फूड खाने के बाद भी आप ये सब कर सकते हो. अभी भी सो मेनी डाइटिशियन जो डाइट देते हैं प्लान, या मुझे बोलते हैं कि आप ये खाना शुरू करो तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा. मैंने बोला जो कर रही हो ना उतना मेरे लिए काफी है, उससे ज्यादा करके कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. हमारा होममेड फूड है ना, वो सबसे बेस्ट है, उसी से सब कुछ चलता है. मैं कुछ भी सप्लीमेंट्स नहीं लेती हूँ, लेकिन जो अपना प्रॉपर डाइट है, चीज, पनीर, स्प्राउट्स, मिल्क, पल्सेस, इसमें सच में सब कुछ है. फ्रूट्स, तो इतना भी आप लो. और मेनली जो स्पोर्ट्स में जाने के बाद, अलग अलग लोगों से मिलने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है ना, व्हाट आई फील, मैंने जो फेस किया कि पहले मैं इतना निगेटिव थी ना, मुझे लगता था हर चीज मैं ही कर रही हूँ, बाकी कोई कुछ करता ही नहीं है, या सारी जिम्मेदारियां मुझ पे है. अभी मैं उससे ज्यादा काम कर लेती हूँ उतने कम टाइम में, और वो फीलिंग भी नहीं आता. मुझे लगता है कि ये मेरा जॉब है तो आई हैव टू फिनिश इट, और उसके बाद जाना चाहिए. अभी एक्सपीडिशन में जाते हो, अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे जब भी होती हूँ, ये एक्सपीडिशन तो रोज रोज नहीं होते हैं. अभी तो बैक टू बैक कर रही हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी, कोई सपोर्ट कर रहा है, अच्छा जा रहा है. सो हमेशा तो इतने फास्ट फास्ट एक्सपीडिशन नहीं होते, बट एक्सपीडिशन का टाइम छोड़ोगे, वो ट्रिप का टाइम सोचो बाकी लोगों के लिए. बाकी टाइम मैं मेरा ऑफिस वर्क, घर का काम, बच्चे, ये सब देख के करती हूँ बचे हुए टाइम में. सो यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम्स एंड लॉट ऑफ पॉजिटिविटी विद स्पोर्ट्स. सो खुद के लिए 1 घंटा निकालोगे तो 23 घंटे आपके बहुत अच्छे जाएंगे. मुझे पहले नींद नहीं आती थी, अभी लेटे बराबर 10 बजे 11 बजे जब भी लेटो तो आपको नींद आ जाती है. तो उससे और क्या चाहिए, ये सारा टाइम बच ही रहा है ना. तो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास टाइम है इसलिए तुम दे रहे हो. ऐसा नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, बट नाउ आई कैन डिवाइड दैट टाइम. ये स्मार्टली आप सीख जाते हो इसमें जब आते हो. सो ओनली दैट इज इम्पोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अप, सुबह सुबह जल्दी उठ के बाहर, घर से बाहर निकलना तो पहला कदम है. बहुत लोग
ये कर पाते हैं, लेकिन दे गेट इनटू अ ट्रैप कि हमें एक पार्टनर चाहिए, कोई भी चाहिए, और वो अगर नहीं मिले तो उसको छोड़ देते हैं एक्सक्यूज बना के। आप अकेला जाते थे या आपके साथ कोई आता था? मुंबई पुणे का ट्रेनिंग आई हैड डन अलोन। उसके बाद अभी तो मेरा बहुत बड़ा ग्रुप है, वी आर हैविंग 8 ब्रांचेस। हम लोग ही खुद लोगों को फ्री ट्रेनिंग देते हैं, फ्री डाइट प्लान देते हैं। सो अभी इतना सारा कम्युनिटी बना है, लेकिन जब व्हेन आई स्टार्टेड ना, आई यूज्ड टू रन अलोन, और छोटे छोटे रन नहीं, 9 नवरात्रि रन शुरू किया था पिंकाथॉन का चैलेंज से। 9 किलोमीटर जाके रन करके आने में मैं गिनती थी कि कब खत्म होंगे, बट वो 9 दिन 9 किलोमीटर जैसे ही किया ना, वो टारगेट फिनिश किया, तो आई मूव टू नेक्स्ट। मतलब जब भी आप निकलो ना, कुछ टारगेट लेके निकलो, और वो फिनिश करने के बाद अपने आप नेक्स्ट टारगेट आ जाता है। तो वो पहले कुछ टारगेट दो लाइफ को। अगर कुछ भी टारगेट रहेगा तो हम लोग हमेशा बिजनेस में या जॉब में जैसा टारगेट होते हैं हम करते हैं ना, डे नाइट भी काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी खुद के लिए कुछ टारगेट रखो, देन ऑटोमेटिकली। और अभी तो सोशल मीडिया इतना है ना कि 5 किलोमीटर करोगे तो भी पोस्ट डालेंगे, उसकी वाह मिलेगी तो नेक्स्ट डे निकलने के लिए इनकरेज तो होते हैं ना, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपके जो परिवार में है, एनी ऑफ योर चिल्ड्रन आर टेकिंग आफ्टर यू, सीइंग दिस इंस्पिरेशन? ऐसा सुपर मॉम है, एक्सट्रीम लेडी में आप सुपर मॉम भी है, सुपर बिजनेस वुमन भी है, सुपर एथलीट भी है, सो चिल्ड्रन टेकिंग आफ्टर यू? डॉटर पहले करती थी, अभी तो नहीं कर रही है, बट माय सन इज इनटू दिस। ही इज नॉट रनर, ही इज रेसलर एंड जूडो प्लेयर। सो वो करता है, हर एक अपना अपना पैशन फॉलो करे। सेम मैंने करना है, उसको तो अभी पहले पसंद था साइकिलिंग, अभी उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। शायद मॉम बाहर जाती हो इसलिए भी हो, या फिर सेम चीज क्यों फॉलो करे, ऐसा भी यंगस्टर्स का होता है। सो हर एक अपना अपना कुछ भी फॉलो करे, और हर एक जन फैमिली में करना शुरू करेंगे सर, देन आई विल फेस डिफिकल्टीज। लेकिन हाँ, एज अ फिटनेस एवरीवन इज फॉलोइंग। Yeah, the beautiful thing about this is you've done it at an age where people give up. जो ये 40 पार करते हैं तो सोचते हैं अभी आधा जीवन तो निकल गया है, even if you live up to an 80, जो होने दो दवा खा के रहेंगे. So I'll share a little experience with you also. I was twice a day insulin dependent diabetic. सिर्फ आप जैसे नहीं, 10 किलोमीटर हर दिन पैदल चलता हूँ, उससे इंसुलिन बंद हो गया. So it's a fact. Exercise is important. I would ask people to ask questions. Please type your question in the chat window. You don't get an opportunity to see someone who has cycled and run more than we possibly go in a car on a yearly basis. For me also, if anyone say na, go in car and come back same day, I will not go. But on cycle, आपको अच्छा लगता है कि आप कुछ करके आए हो. You went to some 300 kilometer place and come back. It is fascinating कि आप ये सारे 40 घंटे में 30 घंटे में कर सकते हो. So yeah, it's a very, very inspiring thing. I think for not just the 100 of us here, this word will spread so much that अगर कुछ aspiration है तो उसको fulfill कर सकता है. If you don't give excuses. Excuse बीच में आ जाता है तो भी ये करेगा ना सर. अगर यहाँ पे आप गिव अप नहीं करते हो ना, तो आप लाइफ में भी कभी गिव अप नहीं करोगे, क्योंकि वही स्पोर्टिज्म आपको हर जगह पे यूज होगा, each and everywhere. And the other thing that you have also said, and जो हौसला बढ़ाया सबका, is it's everything need not be sponsored. आप self supported बहुत क्या है. हाँ. दूसरी चीज है डाइट, इसमें कुछ मैजिक नहीं है. आप वेजिटेरियन है, जैन है, इतना restrictions होता है. उसके अलावा भी you have been able to manage. And you have not talked about big investment in special gear and things like that. आपका साइकिल भी जो दिखता है, it's not like how Tour de France they spend hundreds of thousands of dollars. थोड़ा बहुत चेंज करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि हर चीज में आप you can't invest और फिर आपको एक ही करके चुप बैठना पड़ेगा. इससे बेटर है कि मैंने एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैंने एवरेस्ट बेस कैंप गया ना, तभी मुझे लगा था कि एवरेस्ट करना चाहिए, मैं थोड़ा प्रिपरेशन से कर सकती हूँ. Then I thought कि बजट कितना है. It was that time 30 लाख, अभी तो बहुत बड़ा होगा. तो मैंने सोचा कि इतने पैसे डालने से बेटर है कि और ऐसा कुछ करते हैं जो हर साल हर महीने कर सकते हैं. Then I switched to
क्योंकि मैं खुद ट्रेकर हूँ, माउंटेनियर, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं एवरेस्ट करूँ या बाकी करूँ, बट इट इज नॉट पॉसिबल। और एक एवरेस्ट कर लोगे तो जिंदगी भर कुछ नहीं करना, ऐसा भी नहीं है, मतलब सारी पूंजी लगा भी दो आप तो भी मुझे ध्यान में आया कि इट इज नॉट पॉसिबल कि फुल लाइफ आप उसी अचीवमेंट पे बैठ के खुश होते रहो। देन आप कुछ दूसरा कर सोच सकते हो। देन आई डिसाइडेड कि आई कैन साइकिल एंड रन, और अलग कुछ कर सकते हो। देन मैं उसमें आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कर पाए तो छोड़ दो, बहुत कुछ चीजें आप लाइफ में कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज लो और पॉजिटिविटी में शुरू रखो, क्योंकि सबको लगता है कि ये तो कर रही है, इसको सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं है, हर एक को दूसरा ही कुछ करना रहता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम बजट या उतना ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं है या उतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो चीज कर सकते हो उसको 100% दो, देन इट विल बी कमिंग विथ फ्लाइंग कलर्स। काम में भी वो ये चीज सही है, पर्सनल लाइफ में भी ये चीज सही है। 100% आप देगा तो 100% रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा। खुद पर भरोसा होना चाहिए। सो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा बढ़ा? हर बार मुझे हर चैलेंज में लगता है, क्योंकि मैं खुद से खुद जो सोचती हूँ खुद के लिए, उससे बड़ा चैलेंज लेती हूँ। लेकिन तब सोचती हूँ कि अगर होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक चीज होगी, लेकिन करके ही नहीं देखूंगी तो कैसे पता चलेगा। और जब वहां पहुंचती हूँ तो फेस करने के बाद खुद को बोलती हूँ, अगर बहुत चैलेंजिंग लग रहा है ना, तो इसके बाद वाला चैलेंज मत लेके ना, लेकिन ये वाला तो किसी भी हाल में फिनिश करके घर पहुंचना। ऐसा सोच के वो फिनिश करती हूँ। और जिस टाइम आप वो फिनिश करते हो ना, उसी टाइम आप दूसरा कुछ सोचना शुरू करते हो। एट द मोमेंट आई फिनिश ना, एवरी टाइम आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अदर, क्योंकि वो आपने पार कर लिया ना जो आपके लिए ऑब्स्टेकल था। देन सडनली, लेकिन वो टाइम में, क्रुशियल टाइम में हमेशा आई ऑल्सो फील, लेकिन मैं हमेशा खुद को वही बोलती हूँ कि ये वाला तो तू कैसे भी करके जाना है, अगले वाले में चाहिए तो तू सोच लेना, लेकिन ये वाला फिनिश करना। और दूसरा है कि अब तक ऐसा है कि पुश करके करके फिनिश कर रही हूँ। सो फैमिली बोलती है कि या गो गो। जिस टाइम मुझे लगता है, पता नहीं, मैंने कभी पूछा नहीं कि मैं वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ जिन जिन लेडीज ने शुरू किया था साइकिलिंग या रनिंग, वो लोग कहीं ना कहीं वापस आए और फिर वो आगे नहीं हुए। तो मैंने ऐसा सोचा कि ये वाला फिनिश नहीं करूंगी ना, तो अगले वाले टाइम में मैं घर में कैसे पूछूंगी कि आई कैन गो और नॉट। सो ऐसा खुद के लिए कुछ छोटा सा टारगेट रखेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आने में बुराई नहीं है, लेकिन उस टाइम तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप कुछ तो रखोगे ना। सो मैं ऐसा खुद के लिए रखती हूँ कि अरे तुझे वापस कुछ करना है ना वो वाला दिमाग में, तो तू ये पहले कर। सो ऐसे खुद के लिए बोलोगे, कुछ टारगेट रखोगे, देन यू विल कम आउट ऑफ दैट चैलेंज। That is the motivation. यहाँ chat window पे लिखा है, the person who gave your introduction, he has said, keep a small reward. If you want to run 5 kilometers or cycle 10 kilometers, maybe keep a small reward at the end of it. इसने लिखा है कि बादाम मिल्क पीने के लिए वो 3 किलोमीटर चल के जाता है, तो कोई बात नहीं, some motivation. So if there are any other questions for Preeti ji, please ask. Anyone in the call, please type it in the chat window and I will read it out. Or you can unmute yourself and ask also. So this is a big inspiration. I hope the people who are present here this evening, not tomorrow morning, will at least walk for 30 minutes. And if you're running, you will meet your target for today. That should be the takeaway. Otherwise, we would have wasted Preeti ji's time. She's come and shared her life story. So don't give an excuse. This evening, tomorrow morning is unknown. Aaj shaam niklo. Walk, even if it is 2 kilometers. Run, even if it is 1 kilometer. Or play any sports which will give you positivity and energy. That is most important. Because sports वो है जो ना सारे टेंशन से निकल के आपको दूसरा कुछ सोचने पे मजबूर करता है। क्योंकि आप घर में ही सोचोगे, टीवी देखेंगे, कुछ देखेंगे, तो आप वो वाला जो आपका टेंशन है ना, डे टू डे लाइफ का 23 आवर्स वाला, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो उसके लिए ना स्पोर्ट्स ही है। कहीं भी जाओ, किसी और के साथ जाओ, सो यू विल इंटरेक्ट विद देम। कुछ वो भी आपका कुछ पर्सनल टारगेट नहीं बोलेगा, आप भी आपके पर्सनल टारगेट नहीं बोलोगे। वहां पे एकदम इंसान रिफ्रेश होके आता है। दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। बहुत मतलब बहुत प्रेरणा मिलती है आपकी बातें सुन के। तो एक्चुअली है कि मैं एक फिजिकल हैंडीकैप हूँ, तो मेरे पैर में एक प्रॉब्लम है। तो क्या है कि मैं क्रिकेट वगैरह खेल लेता था। फिर क्या हुआ, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ, तो फिर उस पैर में फिर होता है ना, एक्सीडेंट के बाद रोड लग गया है। तो अब है कि थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हूँ, क्योंकि मैं पहले क्रिकेट खेल लेता था, फील नहीं होता था कि मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ। लेकिन हाँ, अब थोड़ा सा वो होता है, तो ये दिक्कत है। तो क्या हम अपने आप को मीन्स कैसे इससे हम कर सकते हैं? मेरी कर आपकी सकते कहानी हो। सुन के आपको बहुत दो अच्छी तीन लगी। एग्जाम्पल देती हूँ। एक मयूर करके है मुंबई से, जिसका एक हाथ पूरा एक्सीडेंट में गया था जब वो 13-14 ईयर्स का था, एंड नाउ ही इज पैरा ओलंपिक का इंडिया का इंटरनेशनल क्रिकेटर बन चुका है। और वो खुद का बीकॉम एमकॉम ग्रेजुएट होके अभी वो खुद की इंस्टीट्यूट भी चलाता है। अपार्ट फ्रॉम ही साइकिलिंग, एक हाथ नहीं है, उसने दूसरा हाथ नहीं लगाया है। मतलब आप सोचोगे कि उसने कुछ एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक हाथ से क्रिकेट खेल के इंडिया के लिए खेलता भी है, साइकिलिंग 200 किलोमीटर के राइड भी करता है। सो उनको देखोगे तो सेम, अभी वो क्रिकेट में है तो इट इज डिफरेंट स्पोर्ट्स। देन और एक है, एक अशफाक करके है, जिसका मुझे फोन आया था एंड आई कनेक्टेड टू समवन और उन्होंने उसको हेल्प की थोड़ी बहुत। और केरला टू खारदुंगला उसने साइकिलिंग किया लास्ट ईयर। अशफाक करके, आप ये भी देखना, उसका फेसबुक या इंस्टा पे सर्च कर लो। वो भी एक पैर से पैरालाइज है मेरे ख्याल से लाइफ से। तो उसने मुझे फोन किया था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ क्या। बाद उसका एक्सीडेंट हुआ था और 3 महीने तक वो कोमा में था। उससे बाहर आने के बाद वो कुछ करना चाहता था, इसलिए उसने फोन किया था। देन उसने केरला से साइकिलिंग शुरू करके सच में वो खारदुंगला पहुंचा। और अभी मुझे वहां पे थी, उमलिंगला करना था या केला पास साइकिलिंग करना था, क्योंकि उसने वहां पे रुक के किया था। तो मैंने उसको फोन करके पूछा तो उसने उसके डिटेल्स दिए। तो है कि आप चाहो ना तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। वो तो कुछ भी नहीं था ना, उसने पहले कभी साइकिलिंग भी किया था। वो था कि उसको कुछ करना है, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूँ। सो ही हैड डन केरला टू खारदुंगला, मतलब सोचो कितना लंबा। और वो निकला, उसके पास जब उसने सोचा था तो कुछ भी नहीं था। अपने आप लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया और उसका कोई ना कोई हेल्प करने वाला मिल गया और वो पहुंच गया। तो उसने सिर्फ कोई सपना देखा था और उसकी तरफ जाना सोचा था। तो ऐसे मुझे 2 एग्जाम्पल पता है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो लोग चाहते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा करना जरूरी है, खुद को गुडफील होने के लिए जितना जरूरी है उतना तो हर कोई कर सकता है। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग मी। हाँ, और फिर भी लगे तो मेरा नंबर लेके कभी भी पूछ लेना। आई विल बी देयर ऑलवेज कि क्या कर सकते हो आप। हेल्प करने के लिए तो हमेशा है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ मैम, यस, थैंक्स। Thanks, Ranjay. That was very bold of you, and I wish you all the confidence and commitment to take on. ये जो आपने सवाल पूछा था तो बहुत सही सवाल है. We have lot of constraints at times, but we can overcome them. उतना तो confidence आपको दिलाया प्रीति जी ने. So I will take this opportunity on behalf of everyone present here to really salute you, madam. It is a commitment. It is a almost unbelievable thing कि ऐसा भी हो सकता है. Starting at this age with For all me the also ailments it is that you talked unbelievable. about. Yeah, and इतना करने के बावजूद आप इतना मॉडेस्ट है. कोई लोग को, हमारे स्टार लोग को एटीट्यूड है, सोशल मीडिया पे वो एटीट्यूड दिखाता है थोड़ा थोड़ा चीज करके भी. But you come across as someone, if I see you in the market tomorrow, I won't know that you have cycled 300 kilometers. आपका वो कुछ airs नहीं है, बिल्कुल down to earth है आप. ऐसे ही रहिए and keep breaking more records. I only hope, well, they keep giving Arjuna awards and other things to other sports. They will give these kind of awards to people like you also, where there's a category to inspire people instead of becoming a liability to society as we grow older. It will be different. We will have a fitter India. If people, Yes. even 1 out of 100 follow you, it will be good. And if 10 out of 100 follow you, it will be a positive transformation. Thank you very much for inspiring us. God bless you. Thank you for inviting me here.
Yeah. On behalf of every Sassian, we are truly proud to have listened to you today. It's a huge motivation. It's a huge motivation. या और मैं भी यही चाहती हूँ कि चम्मच समझ लो, मेरी जर्नी से 2 लोग भी एक्सपायर हुए तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोग मैंने लेह मनाली की किया तो 2 जनों ने मैसेज किया था कि आज का मैराथन हमने आपको सोच के भागा, तो ये मैसेज आपको कितना इंस्पायर करेगा। So Saskin से मुझे कम से कम 10-15 ऐसे मैसेज आना चाहिए प्रीति जी को, जो आप ये स्पीच सुनने के बाद इंस्पायर होके 5 किलोमीटर दौड़ा तो भी ठीक है, या 10 किलोमीटर साइकिल किया। Quantity is not important, but please start it and give her your first message saying thumbs up. It made me get up in the morning and go. ठीक है? Thank you everybody. Have a wonderful evening. Stay fit. You can do it as the message. Please give your feedback. Amy has shared a feedback link. Please do give your feedback so that we can share the feedback with Preeti as well. And your, messages to her if you have any. Preeti ji, aap extreme lady ne, amazing lady. I think you should call yourself. ये मेरी डॉटर ने नाम दिया था, कुछ भी कर रही है तो उसने बोला कि तेरा हैशटैग यही है अभी, और इसीलिए वो बन गया। ऐसा कुछ सोच के नहीं था, मैं जो कर रही हूँ शी वाज सपोर्टिंग मी, और सडनली उसने लिखना शुरू किया, और उसने मेरा इंस्टा हैंडल तब तक नहीं था लास्ट ईयर तक, तो सो शी स्टार्टेड राइटिंग एक्सट्रीम लेडी, और वो अपने आप बन गया। Amazing. Thank you very much. On behalf of everyone from Saskin, God bless, and enjoy your cycling and running and continue to inspire us. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Yeah. Bye. Good day. Good day. Thanks, man.